Hello everyone, I am Manthan Sharma. Currently I am pursuing my Masters from NIT Jalandhar in Mathematics, and I have done my Bachelor's from Pandit Deendayal Secondary University Sikar. Along with this, I have done my B.Ed and have 2 years of teaching experience. Our today's topic is function. So let's begin the topic and just get to know what the function is, what is the type of it, and check it out. Function. Function is a mapping from a non-empty set to a non-empty set B, in which each element of set A assigns a unique image in set V. देखिए इसको अपन एक वेन डायग्राम थ्रू समझते हैं. जैसे कि मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे सेट बी, ये फंक्शन की मैपिंग. यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई, and let suppose elements of B are like X, Y and Z. Now let's define the mapping from set A to set B by following our definition of the function. A function is a mapping from set A to set B in which both the sets are non-empty, and set elements of A have the unique image in set B. Like set A is mapped on the X, B is mapping on let Y, D is mapping on let X, and E is mapping suppose on Y. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A की मैप कर रहा है X पर, B कर रहा है Y पर, C मैप ही नहीं कर रहा है D X पर and E Y पर. तो यहाँ पे ये कंप्लीटली फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैव a image in set B that is unique, that should be unique, means each element. So C must be mapped on B and the image should be unique. This should not be like this and this. The image should be unique and each element of A must have image on B. तो इसको और एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए अभी, और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये सेट ए है अपना, यहाँ पे सेट बी है, ये मैपिंग है अपने फंक्शन की. सपोज है इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई, जैसे कि इसके थे एक्स वाई एंड जेड. So by following the definition, there should be image of each element of the set A. So let's define it by like A maps on the X, B is also mapping on the X, C is mapping on the Y, D is also on Y, and E maps on X. Clearly we can see each element of set A are mapping on set B, and each have unique image. Like A have only X, B have X, C, Y, D, Y, E, X. Not a single element have the two images in the set B. Now we define the concept of the domain, codomain and range. Domain क्या होती है, codomain क्या होती है, and range क्या होती है. Here let's write domain, and just by giving it the notation, domain of A is equals to elements A, B, C, D and E. More analyze the elements of the set A are well known as domain here and codomain. Codomain is the collection of the elements of the set B. And here one thing that we have to understand here, what is the range? Range is the set of the elements of the codomain that have pre-image in set A. So now check range. Range is equals to, here we can see X have pre-image, Y have pre-image, but Z
not having single preimage in A. So here X and Y are the elements of the rank set. X and Y. यहां तक अपन ने देख लिया है कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और फंक्शन क्या होता है. आपको थोड़े से एक और जनरलाइजेशन आपको मैं समझाऊं तो फंक्शन के अपन कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज. इसको आप एक बेहतर तरीके से समझने के काम में ले सकते हैं, बट ये अपन ने प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं करते. अभी हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of function with the help of two examples. हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेते हैं. y is equals to e base to the power x and second one is x is equals to y square. and फर्दर स्टडीज करते हैं कि इनमें कौन से ग्राफ हैं वो फंक्शन है, कौन से ग्राफ फंक्शन नहीं है. पहला ग्राफ y is equals to e base to the power x and second graph x is equals to y square. हमें पता है कि y is equals to e base to power x का ग्राफ कुछ इस तरह होता है जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज डोमेन होती है एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज रेंज होती है. x y सेम इसी प्रकार x is equal to y square का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है जिसमें वापस अगर मैं दोहराऊं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज डोमेन होती है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज रेंज होती है. अभी हम पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि x की हर एक वैल्यू पर y की हमें एक ही वैल्यू मिल रही है. मतलब जो कि अपनी फंक्शन की डेफिनेशन भी थी कि फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ सेट A देयर शुड बी यूनिक इमेज एंड फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ सेट A. तो यहाँ पे सेट x की हर एक वैल्यू पर हमें y के अंदर यूनिक इमेज मिल रही है. तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूं 2 3 4 5 हमें हर एक पॉइंट के ऊपर y की दो वैल्यूज मिल रही है. जो कि आगे भी हम बढ़ सकते हैं चेक करने के लिए, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. इसी चीज को हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि ग्राफ अगर सिंगल टाइम कट हो रहा है तो वो फंक्शन होगा, बट अगर एक से ज्यादा बार ग्राफ कट हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा. तो यहाँ पर हम अपना आज का टॉपिक खत्म करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने पढ़ा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, किस तरह हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है ग्राफ के थ्रू. हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन, जिसमें होंगे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे, स्पेशल फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे एंड कंपोजिट फंक्शंस होंगे. बाद में हम एक एक ग्राफ को कैरेक्टराइज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ लाइक 1 1 ऑन 2 है, लाइक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, इवन है, ओड है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड ऑल सच थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज. थैंक यू.